Hello, my dear students. This is a very important topic that is three-phase AC power and single-phase AC power. I have shared this PDF in the group. Now I am going to explain each and every topic of this PDF. Okay. You know, today I will talk in mixed language, Hindi and English both. Okay. You know, instantaneous voltage we have already studied in first sem in basic electrical. Instantaneous voltage is given by small v equal to V max sin omega t, where V max is the amplitude of the voltage and omega is the frequency, angular frequency of the sinusoidal uh, voltage waveform. Similarly, I equal to I max sin omega t minus phi, where minus phi means current is lagging with voltage by angle phi. ये हमने फर्स्ट सेम में ऑलरेडी पढ़ रखा है. अब इसमें जो पावर है, पावर इंस्टेंटेनियस पावर, जो एसी में जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं और एक्सप्रेशन सिंपली वोल्टेज इनटू करंट. इन केस ऑफ डीसी, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगुलर डिफरेंस नहीं होता है. वी और आई सेम एंगल सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसके बीच जो पावर फैक्टर होता है cos फाई, वो क्या होता है 1. एंगल 0, फाई विल बी 0 and cos 0 will be 1. Unity power factor. But in case of AC, there is angular displacement between voltage and current, due to which there will be some angle phi, hence there will be appear a cos phi. First we have to derive this power expression in single phase AC circuit, then we will derive this formula in three phase. You can see power simply V into I, where V small v is instantaneous voltage and I small I is the instantaneous current. As we have already mentioned there, small v is given by expression V max sin omega t, while current was lagging by angle phi, and it was given I max sin omega t minus phi. Its multiplication will be provide us instantaneous power P. But when we will solve it, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आप ध्यान से देखें, टू जब इस एक्सप्रेशन में 2 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाला सेक्शन मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आपका अगेन 2 हो जाएगा. मतलब 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. अब इस 2 sin omega t minus phi can be treated as 2 sin A sin B, and expansion of 2 sin A sin B will be equal to cos A plus B and minus cos A minus B, where A is equal to omega t and B is equal to omega t minus phi. जब A plus B करेंगे तो omega t and ये omega t, सॉरी ये होता है cos A minus B minus cos A plus B. तो cos A minus B करेंगे, आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा cos A minus B, तो omega t minus omega t minus phi, तो omega t कैंसिल आउट,
आपका बच जाएगा यहाँ पे 5, ये आपका सिंपल cos 5 हो जाएगा, माइनस cos a प्लस b, फिर दोनों का सम ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, ओमेगा टी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ओमेगा टी माइनस 5. ओके, फाइनल इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू द v max I max by 2 ब्रैकेट में cos 5 माइनस 2 cos ओमेगा टी माइनस 5. यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा. अब इस पावर को वन साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एवरेज पावर हमें प्राप्त होता है. ठीक है, अब इस पावर एक्सप्रेशन में दो पार्ट्स हैं, एक तो बी मैक्स आई मैक्स बाय 2 इंटू cos 5, दूसरा इस बी मैक्स आई मैक्स बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा इस वाले फंक्शन के साथ. तो यहाँ ध्यान से देखें, इसमें दो पार्ट्स है, एक कांस्टेंट, ये वाला जो पार्ट्स है आपका कांस्टेंट होगा बिकॉज देयर इज नो टर्म ऑफ ओमेगा टी फॉर गिवन लोड, दिस विल बी कांस्टेंट, and second term is not constant, it's vary with time and frequency, right? And power, average power is positive, average power will be positive, and it second term will be maybe positive and negative both, right? Now power consumed in resistive element is positive, however it is zero in pure inductance or pure capacitance. जो रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ा है फर्स्ट सेम में बेसिक इलेक्ट्रिकल में, रेजिस्टिव एलिमेंट होता है वही पावर कंज्यूम करता है, जबकि जो कैपेसिटिव या इंडक्टिव एलिमेंट होता है ये आपका पावर कंज्यूम नहीं करता है. ये पूरे एक साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में पावर को ऑब्जर्व करता है और उसके नेगेटिव साइकिल में पावर को रिटर्न कर देता है सोर्स को. मीन्स इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में या इंडक्टर या कैपेसिटर में पावर पॉजिटिव साइकिल में, वोल्टेज और करंट की पॉजिटिव साइकिल में आपको ऑब्जर्व करता है, राइट? इंडक्टर ऑब्जर्व करता है आपका इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर ऑब्जर्व करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगले नेगेटिव साइकिल में ये अगेन वो पावर ट्रांसफर कर देता है सोर्स में. ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका कांस्टेंट पावर, अगर हम पूरे इस इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करें पूरे वन साइकिल के लिए, वन टाइम पीरियड के लिए, तो ये आप देखेंगे सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट्स अपीयर होगा, जबकि ये आपका जो वेरिएबल पावर है जो वेरी कर रहा है डबल फ्रीक्वेंसी से 2 ओमेगा टी, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है, ये आपका इसको जब इंटीग्रेट करेंगे वन साइकिल के लिए तो ये आपका एवरेज पावर 0 होगा. अब भी हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा है आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू. किसी भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू का मतलब इंटीग्रेशन फॉर वन साइकिल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव. साइनसॉइडल या कोसाइन वेव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होता है, तो इसलिए आपका पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया को जब सम करेंगे तो दोनों मिलके 0 हो जाएंगे. इसलिए जब आप इस इंस्टेंटेनियस पावर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे फॉर वन साइकिल, जो ये होता है 1/t, एवरेज पावर जो फार्मूला होता है 1/t 0 to t इंटीग्रल pdt, जहाँ पे स्मॉल p जो है क्या होता है इंस्टेंटेनियस पावर. जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट्स. इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इक्वेशन 3.3 का जो कांस्टेंट वाला पार्ट है b max I max by 2 cos 5, आपका सिर्फ यही अपीयर होगा
एज ए एवरेज पावर, राइट। तो इस एवरेज पावर की जो वैल्यू है इसको हम कैपिटल पी यूज करते हैं रेदर देन पी। इंस्टेंटेनियस पावर की जगह हम अलग से इसका नोटेशन दे देते हैं कैपिटल पी। जो फेज एंगल का जो कोसाइन होता है, कोसाइन ऑफ फेज एंगल इज नोन एज पावर फैक्टर, इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब किसी एक्सप्रेशन में कहीं पे अगर कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई डिस्क्रिप्शन हो, लाइक ए लोड ड्रॉ 100 watts watts at a power factor of 0.707 लैगिंग। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि आपका जो 100 वाट्स का लोड है इसमें वोल्टेज से जो करंट है वो 0.707 पावर फैक्टर से लैग कर रहा है, ठीक है। आप वेवफॉर्म ऊपर का जो एक्सप्रेशन है आपका, उसका अगर वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे रियल पावर वोल्टेज एंड करंट के बीच, तो आप ध्यान से देखें फॉर लैगिंग लोड इस इंफॉर्मेशन के लिए अगर जो वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप होगा। देखिए जो डॉटेड लाइन है ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, जो थिन वाला जो वेवफॉर्म है वो करंट वेवफॉर्म है, जो थिक लाइन है ये थिक लाइन ये आपका पावर वेवफॉर्म है। ध्यान से देखें यहाँ पे वोल्टेज जो है करंट से लीड कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज यहाँ पे नॉन जीरो है जबकि यहाँ करंट जीरो है। जब ये आपका वोल्टेज जीरो है तब तक करंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हुए धीरे-धीरे पीक की तरफ करता है। इस दोनों का वेवफॉर्म का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं जो एवरेज पावर है या जो रियल पावर जो कंज्यूम होता है वो आपका पल्सेटिंग नॉन जीरो होता है। देखिए यहाँ पे जो है कुछ पोर्शन जो है आपका नेगेटिव आ रहा है, नेग्लिजिबल है, आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है नॉन जीरो पल्सेटिव टाइप का पावर आ रहा है। मतलब ये पावर क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ये पावर आपका लोड द्वारा कंज्यूम होगा। जबकि आपका जो कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड होता है यही वेव फॉर्म जो पावर होता है ये जितना पॉजिटिव साइकिल जाता है वहीं नेगेटिव साइकिल जाता है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल जब एवरेज लेते हैं तो ये जीरो हो जाता है। पॉजिटिव साइकिल का मतलब पावर कंज्यूम किया, नेगेटिव साइकिल का मतलब पावर रिवर्स हो गया, तो रिवर्स मतलब फिर अगेन लोड से सोर्स में चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस वेवफॉर्म को आपको दिमाग में आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ के सेट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता रहूं। जो रियल पावर होता है किसी भी लोड में, अगर 100 वाट्स का लोड है और उसका पावर फैक्टर 0.707 लगेगा है, इसका मतलब है कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा होगा। अब ध्यान से देखें ये जो डॉटेड लाइन है वोल्टेज वाला वेवफॉर्म है, ये जो करंट का जो वेवफॉर्म है ये थिन वाली जो लाइन है ये करंट का वेवफॉर्म है, और ये जो पावर का वेवफॉर्म है जो थिक वाली लाइन है ये पावर की वेवफॉर्म है। ध्यान से देखें ये यहाँ पे इस वेवफॉर्म में करंट जो है वोल्टेज से, ये डॉटेड लाइन से ये थिन लाइन क्या है लैग कर रहा है। कैसे? यहाँ पे देखिए जब ये वोल्टेज नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, यहाँ पे आपका जो करंट है वो जीरो है, करंट जीरो है, मीन्स जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो करंट से लीड कर रही है, या दूसरे शब्दों में जो करंट की वेवफॉर्म है वो वोल्टेज वेवफॉर्म से लैग कर रही है। ठीक है, अब इसका आप देखेंगे ध्यान से, आपका जो पावर का वेवफॉर्म है ये देखिए ध्यान से, जहां जहां पावर सिंपली क्या है वी आई कॉस फाई, तो जहां जहां वी और आई कोई एक भी जीरो होगा तो वहां पे पावर जीरो होगा। ध्यान से देखें हमें जो है वोल्टेज और करंट, अब ये जो नेगेटिव साइकिल आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज और करंट, ये जो वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, यहाँ करंट जीरो है, तो इसलिए पावर जीरो है।
चूंकि करंट यहाँ पे नेगेटिव है, अब यहाँ पे देखें ध्यान से, ये वाला सेक्शन में करंट जो नेगेटिव पर बढ़ रहा है जबकि वोल्टेज पॉजिटिव है, तो पी आई वी नेगेटिव, करंट नेगेटिव है तो V इंटू माइनस आई, तो पावर विल बी नेगेटिव, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ करंट तो जीरो हो गया, बट यहाँ करंट जब जीरो हो गया तो पावर भी जीरो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये जो आपका पॉइंट्स है, ये मान लो ए पॉइंट, ये दूसरा जो है आपका ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में पावर आपका निगेटिव है। क्यों है कि इस पॉइंट के बाद मान लो ये ए पॉइंट है, राइट, और ये आपका बी पॉइंट है। थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है। तो ए और ए के बाद आप ध्यान से देखें, करंट तो पॉजिटिव हो जा रहा है बट वोल्टेज वाज स्टिल नेगेटिव, ड्यू टू विच प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, हेंस पावर विल बी नेगेटिव कर्व, राइट। And overall waveform the power is pulsating positive, means power is a real power is always unidirectional, not bidirectional. Unidirectional means it's always flow in from source to load, not from source load to source, right. This was the waveform of the instantaneous power. इसमें जैसा आपको मालूम है, जो एवरेज पावर आपका जो सेकेंड पार्ट जो कंपोनेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगा थी, वो आपका क्या आएगा, वो आपका एग्जैक्टली पावर विल बी जीरो। उसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल विल बी सिमेट्रिकल, ड्यू टू विच एवरेज पावर विल बी जीरो, राइट। दिस इज फेजर नोटेशन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, no requirement as per our syllabus of unit 1. Real and reactive power. Real power, which power is consumed by load. Real power also known as active power. It's given with VI cos y. Here mod V or mod I is also mod V. It's also known as the RMS power, RMS voltage. This is RMS current. Okay. Now again we can write the above equation, equation 3.3. You can replace voltage by RMS value, mod V and mod I, and cos y and minus cos 2 omega t minus 5 is same. यहाँ पे ध्यान से देखें, इस cos 2 omega t minus 5 को जब हम एक्सपेंड कर देंगे, क्या होता है, cos a minus b, cos c cos b प्लस साइन बी, जहाँ पे ए क्या है 2 ओमेगा टी एंड 5 इज बी, तो cos ए cos बी प्लस साइन बी, राइट। तो वी आई cos 5 माइनस वी आई cos 2 ओमेगा टी cos 5 प्लस साइन ओमेगा टी माइनस साइन 5। यहाँ से हम वी आई cos 5 कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बच जाएगा, दूसरी तरफ आपका माइनस वी आई साइन 5 साइन 2 ओमेगा टी बच जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इस पावर का एक्सप्रेशन अगेन दो पार्ट्स में हो गया, ए और बी, ठीक है। तो ए वाला पार्ट्स आपका जो है, आप ध्यान से देखेंगे, इसका वेव फॉर्म हम पहले ड्रा कर चुके हैं, ये कभी आपका जीरो नेगेटिव नहीं जाता है ना, नेवर गोज नेगेटिव। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अब नोट कर लेंगे, इट्स पल्सेट्स अराउंड द सेम एवरेज वैल्यू। ये आपका सेम एवरेज वैल्यू के अराउंड पल्सेट करता रहता है, जैसे अभी मैंने वेव फॉर्म दिखा, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका जो सेम एवरेज वैल्यू के साथ पल्सेट मीन्स कभी अप
अगेन 0, फिर अप 0, मैक्सिमम टू 0, नो नेगेटिव, राइट? ओके, नाउ reactive power. Second part is, this second part is known as reactive power, right? Q will be equal to VI sin phi. Reactive power is given by VI sin phi, right? This power expression, if we will replace VI sin phi as Q and VI cos phi as real power P, then above this expression can be written as P equal to P 1 minus cos 2 omega t minus Q sin 2 omega t. Disconnect network to again. तो ठीक है, तो अगेन ये इस पावर एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस पावर को हम जब रिड्रॉ करेंगे ए और बी को, तो ए का जो एक्सप्रेशन होगा, मतलब आपका जो रियल पावर होगा ए वाला कंपोनेंट्स पी, आपका देखिए पल्सेटिव नॉन जीरो, वाइल बी वाला कंपोनेंट Q sin ओमेगा टी, ये आपका ध्यान से देखें, ये Q के साथ जो इसका कोएफिशिएंट है sin 2 ओमेगा टी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 टाइम्स है किसके, इस रियल पावर P से, ठीक है? इस तो आपका, तो यहाँ से आपका इसका मतलब ये हो गया कि जो B वाला जो कंपोनेंट का जो वेरिएशन होगा वो जस्ट 2 टाइम्स, अगर ये एक आपका एक टाइम पीरियड में ये 0 से कहाँ गया आपका, अगेन 0 आया, तब तक ये आपका 0 से नेगेटिव, पीक से 0, फिर अगेन पॉजिटिव, मतलब ये आपका साइनसोइडल विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, आपका साइनसोइडल वेव फॉर्म होगा ये, with minus, due to minus, it's started with negative cycle side and then positive, and its frequency of the Q components is just double, ठीक है? अब ध्यान से देखिए वेव फॉर्म को, जब तक ये आपका एक साइकिल है तब तक ये 2 बार आपका रोटेट कर जा रहा है, कौन सा, Q वाला कंपोनेंट्स, जो डॉटेड लाइन है आपका B वाला पोर्शन है, मीन्स Q sin ओमेगा टी, जो आपका ये P वाला सेक्शन है, जो एवरेज पावर, रियल पावर, जो अभी हमने प्रीवियस वाले पेज पे जो है हमने देखा, वो आपको क्या है, ये पल्सेटिव एवरेज पावर, ठीक है? यहाँ तक इस डायग्राम को भी आप रियल पावर वर्सेस रिएक्टिव पावर को आप अपने दिमाग में ध्यान से रखेंगे, ठीक है? अब Q की एक खासियत होती है कि जो रिएक्टिव पावर होता है इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ दैट पावर कंपोनेंट्स विच ट्रेवल्स बैक एंड फॉरवर्ड, जो रिएक्टिव पावर्स होता है बैक एंड फॉरवर्ड, मतलब आगे और फिर अगेन पीछे, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका पावर फ्लो होता है, पावर कंज्यूम बाय लोड एंड अगेन रिटर्न बाय लोड टू सोर्स, ठीक है? देखो इस साइकिल में अगर पावर अप अगर रिटर्न हो रहा है तो पॉजिटिव साइकिल में पावर की डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इसका मतलब हो गया कि पावर आपका उस लोड से सोर्स की तरफ होगा पॉजिटिव साइकिल में, वहीं पे अगर नेगेटिव साइकिल में पावर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? जो यूनिट्स है आपकी, जो यूनिट्स है पावर की, वह किलोवाट, मेगावाट, बिगर यूनिट्स, किलोवाट मीन्स 10 to the power 3, मेगावाट्स मीन्स 10 to the power 3, एंड जबकि रियल पावर रिएक्टिव पावर की जो यूनिट्स हैं वो KVAR, VR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, MVAR,
मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। जो VAR है ना, जो के है आपका स्मॉल होता है, तो वाट पे कैपिटल होता है। ये भी कभी कभी आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। किलोवाट को आपको लिखना होता है पर यूनिट, ये ध्यान दें की जो होगा स्मॉल, क्योंकि मेगावाट में आपका दोनों कैपिटल। ठीक है, तो अब आपका जो रियल पावर है P, उसको हम दूसरे इस तरीके से लिख सकते हैं, रियल ऑफ द मॉड V मॉड I इंटू एंगल। ये क्या होता है आपका पोलर फॉर्म, एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म। तो आपको इस पोलर फॉर्म जो लिख सकते हैं इसको, तो अगेन इसका जो जो वैल्यू होगा सिंपली रियल यहाँ पे लग गया, वो क्या हो जाएगा इसका cos फाई, VI cos फाई। और जो cos माइनस फाई क्या होता है, cos फाई के बराबर। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos I एंगल cos फाई, I cos फाई और I माइनस cos फाई। तो जो I माइनस cos फाई होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा I। ठीक है, इसलिए जो आपको पावर को अगेन हम लिख सकते हैं रियल पार्ट्स ऑफ V इनटू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ करंट। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम पूरे पावर सिस्टम में जो पावर होता है, रियल पावर होता है, उसको हम VI ना करके VI V इंटू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द करंट लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए इस वजह यह है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द जो करंट है I cos फाई और I माइनस cos फाई, cos minus phi will be both will be same. Okay. Now apparent power is simply the volt into ampere root of the P square plus Q square. As you know very well. Complex power, there is no need of this topic. You have already studied here. The complex power can be given as this circuit and this vector form, and this is the triangular power triangle form. If apparent power is S, V is voltage across the load, Y admittance, Z is impedance. Then if load is lagging nature, then current will be lag with voltage, and we can make this diagram, this power triangle like this. This is P, this is real, this is the reactive power, and this is S apparent power, right? Now all these things are not important as per our topic in module 1 or unit 1. You can see this, or this question comes from competition like UPPC, sometimes in GATE, when the graph, when there is resting load, what will be the graph and power factor if there is a inductive load, right? In case of inductive load, phase angle will be 90 degree because current lags by voltage by 90 degree, and Q, in this case Q will be greater than 0, means Q will be consumed by the inductor. In case of capacitor load, current lead by voltage 90 degree. As per convention, power factor will be minus 5. Power angle will be minus 5. If we measure from this point, the angle measure in clockwise direction is known as negative, while angle measure from an anti-clockwise direction, this angle will be positive. This is the convention of the angle measurement in power system. In case of capacitive load,
voltage will lag by 90 degree or current will lead by 90 degree. Real power will be 0, but reactive power will be less than 0. This means less than 0 means reactive power will be supplied by capacitor. If Q is greater than 0, means this reactive power is consumed by inductor. If reactive power is less than 0, this means this reactive power is negative. Negative means direction of the reactive power flow will be negative from load to source. Means it will supply to the source. Be careful. You have to understand very carefully. In case of RL, there will be some positive phase angle between voltage and current. If there is a RC parallel circuit capacitor, there will be phase angle, lagging type, sorry, leading type, and where power factor will be in lagging nature. There will Q will be greater than 0. Q will be greater than 0. This means this reactive power will be consumed by load. When the power factor is leading nature, it's capacitive load, there will be negative reactive power, which means this negative reactive power will be supplied to load, supplied to source from load. When there is leading load, okay, if there is a lagging load, this reactive power will be consumed by load, right? I hope this is clear. Now three-phase system. Three-phase system. The three-phase power given by the expression √3 VLIL cos phi. This is simply the multiplication √3 times of line voltage and line current. This can be also written as if this voltage in terms of phase voltage and phase current, then this √3 is replaced by 3 times of Vp Ip cos phi. We have already studied in semester 1 in basic electrical subject. I hope this will you have already in your mind, right? Now the next topic is power flow through transmission line. This is our main topic. All this previous one was the just introduction of the single phase power operation and single phase and three phase. Now this is the main topic, right? Power flow through the transmission line. First, you have to understand the single line diagram of the power system. This is the generator parts, G for generator. This is the sending end bus. This is the VS, is the sending end bus voltage, where this is the power angle delta, right? This is the ABCD, is the ABCD parameter of the transmission line. VR is the R stands for receiving. VR is receiving voltage, and reference voltage is taken as 0. We will take receiving voltage angle at 0, and this can be written in the form like VR angle 0. This is load. Now the complex power will be S, as sending end voltage will be PS plus JQS, real power sending end voltage power, and this is the sending and reactive power. This is the receiving end complex power, apparent power. This is the receiving end real power, and this is the receiving end reactive power, right? This is the sending end current, and this is the receiving end current. This is a single line diagram. This diagram you have to practice it. This diagram will be used multiple times in next unit. Now the complex power at receiving end can be given as SR PR plus JQR.
complex power, as we have already studied, is the apparent power is the multiplication of voltage at receiving end voltage in complex conjugate of receiving end current, right? This is, you have to remember it. This is the receiving end current, complex conjugate of receiving current. You have to remember it. जो पावर सिस्टम में जो पावर होता है ऑलवेज, जो कैलकुलेशन में यूज होता है आपका, वो आपका ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स पावर होता है, जो कि कंसिडर किया जाता है वोल्टेज इनटू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द करंट, not complex conjugate of the voltage. You have to remember it. Now sending in a voltage as per the ABCD parameter, we can write it V is equal to AVR plus BIR. जो वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन होता है ABCD पैरामीटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप नेटवर्क एनालिसिस में पढ़े होंगे, तो क्या होता है सेंडिंग इन वोल्टेज होता है सिंपली A इंटू रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस B इंटू रिसीविंग, राइट? यहाँ से हम जो रिसीविंग एंड करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं VS बाई B सिंपली डिवाइड हो जाएगा माइनस A बाई B। सेंडिंग एंड वोल्टेज का जो आपका एंगल, अब इसको एक्सप्रेशन लिख देंगे जैसा कि हमको गिवन है, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है VS एंगल डेल्टा है, प्लेस कर दिया। जो B पैरामीटर होता है उसके साथ जो एंगल होता है उसको बीटा से नोट कर दिया, ठीक है। रिसीविंग एंड वोल्टेज का जो होगा आपका एंगल 0 रेफरेंस वोल्टेज है, और ए का जो आपका जो एंगल होता है ए पैरामीटर का वो होता है अल्फा, ठीक है। ये आप एबीसीडी पैरामीटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ से आईआर की वैल्यू आपका आ गए सिंपल, ये आप कैलकुलेट करेंगे। ये जो बी एंगल ऊपर जाएगा तो सिंपली डेल्टा माइनस बीटा हो जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये एंगल 0 ही है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आई आर कॉम्प्लेक्स। ये तो आई आर है, यहाँ से हमें आई रिसीविंग करंट मिल गया, लेकिन जब इसका कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट लेंगे तो क्या करते हैं हम सिंपली एंगल का जो है क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर वाले स्लाइड में, ऊपर वाले पेज में पढ़ा कि जब एंगल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट, जब आई एंगल आपका था आई 5 था, जब उसका कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट लिया गया तो आई -5 हो गया। बिल्कुल उसी तरह से इन दोनों का जब हम साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस बीटा है वो बीटा माइनस डेल्टा हो गया। कब? जब ये आई आर जो रिसीविंग एंड करंट है उसका कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट लिया गया तब। उसी तरह से अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। नाउ एस आर रिसीविंग एंड जो अपरेंट पावर होगा ई आर प्लस ए क्यू आर, सिंपली वी इंटू आई कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट, ये आई आर को मल्टीप्लाई कर देंगे वी आर, जहाँ पे आई आर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा वी एस वी आर बाई बीटा, बीटा माइनस ए बी, यहाँ ध्यान से देखें वी आर अंदर जाएगा, वी एस वी आर बाई बीटा एंगल बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर हो गया, बीटा एंगल बीटा माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा। यहाँ से आप जो रियल पावर होगा सिंपली इस एंगल का कॉस, ये आपके तो कांस्टेंट है, जो एंगल कोएफिशिएंट है वी एस वी आर बाई बीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस डेल्टा, जो रियल पावर आपने कॉम्प्लेक्स नोटेशन में, जे नोटेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से सिंपली इसका कॉस बीटा माइनस डेल्टा, सिंपली जब रिएक्टिव पावर लेंगे तो क्या होगा, इस एंगल का साइन ले लेंगे, जो एंगल है आपका साइन ले लेंगे, बाकी कोएफिशिएंट वी एस बाई वी आर बाई बी माइनस एंगल ए, सॉरी मॉड ए वी आर स्क्वायर बाई बी साइन बीटा माइनस अल्फा। ये आपका रियल पावर एक्सप्रेशन हो गया। रिएक्टिव पावर, रियल पावर के लिए हम एंगल का कॉस लेंगे, रिएक्टिव पावर के लिए साइन, एंगल का साइन ले लेंगे। ये रियल पावर रिएक्टिव पावर आपको दिमाग में रखना है अपने ध्यान से। अब हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे। इस अप्रोक्सीमेशन मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन
में जो अप्रोक्सीमेशन में कुछ चीजें रिड्यूस करके आपका सिंपल हो जाएंगे। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए जो ए और डी क्या होता है, दोनों आप एबीसीडी पैरामीटर में पढ़ा होगा, ए और डी दोनों 1 के इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू 1 होती है, एंगल 0। तो मॉड ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा एंगल 0 हम प्लेस कर देंगे ऊपर वाले वैल्यू में। जो बी होता है वो सिंपली जेड इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है, आर प्लस जेड, जिसको हम जेड एंगल थीटा से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बी वाला पैरामीटर है वो क्या होता है आपका, इम्पीडेंस पर निर्भर करता है, और वो आर प्लस जेड लिख सकते हैं, इसको पोलर फॉर्म में जेड इंटू मॉड जेड एंगल थीटा। ठीक है, तब अब ये सारे पैरामीटर्स जो अप्रोक्सीमेटेड पैरामीटर है उसको हम पुट अप कर देंगे पी आर क्यू आर की एक्सप्रेशन में। तो आप ध्यान से देखें, जो बी रिप्लेस हो जाएगा जेड से, ठीक है, और जेड का जो एंगल था थीटा से रिप्लेस हो गया, पहले क्या था बीटा, थीटा से हो गया, ये आपका वी एस वी आर बाई जेड कॉस थीटा में थीटा। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट है वी आर स्क्वायर बाई जेड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा क्यों हो गया, क्योंकि आपका जो अल्फा है वो अल्फा एंगल 0, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है अल्फा की क्या है 0, इसलिए आपका सिंपल क्या हो जाएगा, अल्फा 0 हो गया तो कॉस थीटा बचा। उसी तरह से क्यू आर वी आर बाई जेड साइन थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर बाई जेड साइन थीटा। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये रियल पावर एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका रिएक्टिव पावर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इफ R will be 0 means lossless line and Z will be JX। जब Z में R इम्पीडेंस में जब रेजिस्टेंस 0 होगा ट्रांसमिशन लाइन का, सिर्फ रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तब एंगल JX को हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपने बताया था, जब J से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एंगल 90 डिग्री आ जाता है उस एक्सप्रेशन से, उसको जब पोलर फॉर्म लिखते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो गया Z का, X एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। जब आप इस अप्रोक्सीमेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इस एक्सप्रेशन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी इस अप्रोक्सीमेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, आर इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू, जब आर 0 होगा तो क्या बचेगा जेड में, सिर्फ रिएक्टिव एलिमेंट जे एक्स। जब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल गया, तो इसको जब हम प्लेस करेंगे 90 डिग्री cos 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये आपका वी एस वी आर बाई जेड की जगह आपका रिप्लेस हो गया, आर तो 0 हो गया, एक्स बचा, फिर वी एस वी आर बाई एक्स साइन डेल्टा। ये आपका रियल पावर एक्सप्रेशन हो गया। ये रियल पावर एक्सप्रेशन आपका थ्रू आउट पावर सिस्टम, इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको याद रखना है, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, ना ही सिर्फ सेमेस्टर में बल्कि गेट में भी। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आपको आर 0 थीटा 90 डिग्री, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स जब प्लेस करेंगे रिएक्टिव पावर में, ये आपका हो जाएगा वी एस वी आर बाई एक्स कार्टेल माइनस वी आर स्क्वायर बाई एक्स। ये रिएक्टिव पावर का फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इस दोनों कानून को याद रखना है। ठीक है, तो सिंगल फेज के लिए जो पावर एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका रियल पावर का, हो जाएगा सिंपली वीपीएच वीआरपीएच साइन पीएच मींस फेज वोल्टेज, सेंडिंग फेज वोल्टेज, रिसीविंग साइड वोल्टेज इनटू साइन डेल बाय एक्स। दिस इज द पावर एक्सप्रेशन फॉर द सिंगल फेज सर्किट। थ्री फेज पावर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली 3 टाइम्स, इस पर फेज पावर का 3 टाइम्स कर देंगे तो हमें 3 फेज पावर मिल जाएगा। ठीक है, जब इस फेज वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज में कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपका स्टार कनेक्टेड है तो क्या होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बदलते हैं, तो सिंपली लाइन वोल्टेज में √3 से डिवाइड कर देंगे तो फेज वोल्टेज मिल जाता है, तो वी एस बाई √3 हो गया और ये वी आर बाई √3 कैंसिल, सॉरी
मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो सिंपली क्या हो जाएगा VS VR by X sin del। मतलब जो आपका 3 फेज पावर है, 3 फेज पावर के लिए आपका लाइन वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के sin del divided by X। X is the transmission line reactance। This will be the final expression for 3 phase power in transmission line, can be given as VS into VR sin del by X। You have to remember it। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे फार्मूलों को जो ये डिराइव है, हैंड रिटन है, इसको आपको समझ कर रखना है। सभी स्टेप्स इन गेट में तो इन बिटवीन स्टेप भी पूछे जाते हैं, सेमेस्टर में तो आपको सीधा सीधा डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसके बीच अगर आपको ना कोई डाउट हो, तो किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।